Ladies and gentlemen, please give a big round of applause. Please help me welcome on the digital screen successful entrepreneur, Mrs. Roma Wahabi. Welcome, ma'am. Hello, good afternoon, everybody. मेरा नाम रोमा वाबी है एंड कितनी लेडीज को चाहिए कि इस तरीके का इंट्रोडक्शन आपको मिलना चाहिए फ्रॉम हस्बैंड एंड तो जस्ट कम जॉइन द बिजनेस. मेक श्योर बहुत अच्छे से आप बिजनेस बिल्ड करते हो. यू विल ऑल्सो गेट दैट एडिफिकेशन बिकॉज हमने बिगनिंग में जब शुरू किया था वी वर नॉट लाइक दैट एंड आज जो दिखता है ये पॉलिश्ड बोलेंगे. आई जस्ट टॉक अ लिटिल बिट अबाउट माई सेल्फ. जस्ट एज हम दोनों एक्चुअली मुंबई से हैं. वी आर born in Mumbai but brought up all in Middle East. We have 2 children. हमारे 2 बच्चे हैं. My daughter, she's 25 years old, Shalini Babi, and she works as a fashion stylist with the Bollywood celebrities. And my son is 22 years of old, and he's already a graduate, and he's going to venture into a business of his own. And we have been born in Mumbai and grown up in Abu Dhabi and Al Ain as far as I go. And my entire life, most of it is spent in the Middle East. And I have done my education from there. There you have education only up till the 12th. My father was working with the royal family, and because he was working with the royal family, handling all the finances, his job profile was such that we had a lot of association with the royals over there. एंड इसीलिए बहुत सारी लाइफस्टाइल आप बोलो बहुत कुछ देखा है. राइट, वी हैव सीन ग्रेट हाउसेस, वी हैव सीन डायमंड स्टडेड मर्सिडीज एंड ऑल दैट स्टफ. वो सब कुछ देखा हुआ था. सो आई डेफिनेटली न्यू कि पैसा आप अगर है हाथ में तो कहाँ कहाँ खर्चा कर सकते हैं. दैट आई डेफिनेटली न्यू बिकॉज आई हैव सीन अ ग्रेट लाइफस्टाइल. And post my education in the 12th, है ना, I had to come to Mumbai for further education because 12th के बाद वहाँ पे education नहीं है. That's when we came to Mumbai for further education. लेकिन एक चीज़ मेरे दिमाग में बहुत clear थी, education करना है, लेकिन I never wanted to do a job. And I always wanted to marry a person जो well settled है life में. बिकॉज पहले से बहुत अच्छी जिंदगी जी थी. सो आई डेंट वॉन्ट कि बाद में कहीं स्ट्रगल्स हों. सो दैट वॉज वेरी सेट इन माई माइंड. आफ्टर माई 12th आई केम टू मुंबई एंड आई गॉट एंगेज. सो आई वॉज 18 years of old when I got engaged, and they wanted the marriage very quick. So I decided, since the boy is also from the Middle East, because I wanted a boy who's exactly from Middle East because my entire family lives there. So Mumbai में कोई है ही नहीं. So I never wanted a boy from here. So we got married at the age of 19, and we were super duper. I was excited because I got what I wanted. I wanted a boy who's from Middle East. I wanted a boy who's well settled. And third thing I wanted was that I wanted a self-made man. And I'll tell you the story वो किस तरीके से self-made man भी हो गए. Though that time my in-laws were very well settled, we had a business of our own in Muscat, and we got married. And हमारी मैरिज के बाद जब हम हनीमून सोचते हैं तो हमारी डेस्टिनेशन आप सोचो किस तरीके से हमने सोची थी, whether to go to Kashmir or whether to go to Switzerland, right? Majority people think of going to Switzerland, लेकिन हम जैसे लोगों ने सोचा कश्मीर जाएंगे because we were entirely in Middle East. हमने सोचा सिर्फ मुंबई आ रहे हैं सिर्फ मैरिज के लिए, तो मैरिज के बाद कश्मीर हो सकता है, स्विट्जरलैंड तो बाद में भी कर लेंगे. सो वी डिसाइडेड वी गो टू कश्मीर. हमारी मैरिज बहुत अच्छे से हो गई. 1 month वी हैड अ सुपर डुपर गुड हनीमून, ऑल इन 5 stars, ऑल इन स्टाइल. एंड पोस्ट दैट आई फ्लू डाउन बैक टू मस्कट. एंड एक लड़की को क्या चाहिए, इफ आई कैन आस्क यू, अगर मैरिज करते हो तो क्या चाहिए? एक अच्छा घर चाहिए, राइट? यू वांट अ कंफर्टेबल लिविंग. वो सभी चीजें मैरिज के बाद मेरे पास थी. एक पॉश एरिया में बहुत बड़ी विला थी. वी हैड अ मर्सिडीज ऑफ आवर ओन. वी हैड सर्वेंट्स. वी हैड कपड़े बोलो तो हम सिर्फ डिजाइनर वेयर पहनते थे उस समय. एंड ज्वेलरी, हाँ, लेडीज को ज्वेलरी बहुत पसंद है. सो आई हैड एवरीथिंग इन हैंड. एंड ऐसे लगता था कि गॉड बहुत मेहरबान है कि सब कुछ सही जा रहा है. एंड तभी 1 साल के अंदर हमारी डॉटर भी बॉर्न हो गई थी. एंड व्हेन शी टर्न 9 months, टेबल्स बिल्कुल टर्न हो गए. जब वो 9 months की थी तो वहाँ पे यू नीड टू हैव अ लोकल पार्टनर, और उसने हमें चीट किया. ओवरनाइट हमको मुंबई आना पड़ा. दैट वाज वन प्लेस मुझे कभी नहीं आना था बिकॉज एंटायर फैमिली इज देयर. तो मुंबई आके करना क्या है.
but God always has a better plan for you, and that's how we moved to Mumbai. जब हम मुंबई आए तो लाइफ बहुत डिफरेंट थी, राइट? जो इतनी कंफर्ट वाली लाइफ थी अब बहुत ही तकलीफ वाली लाइफ हो गई. जो स्टाइल था वो तो चला ही गया था. We literally we had no money. एंड जब आप बहुत अच्छे बैकग्राउंड से आते हो एंड व्हेन यू हैव टू फेस सो मच डिफिकल्टी, बहुत डिफिकल्ट है, राइट? बट 5 साल विनोद ने बहुत मेहनत की. उन्होंने खुद का अपना बिजनेस वापस से चालू किया एंड 5 साल लगे हमको वापस सब कुछ लाने के लिए. अगर आपको याद है तो मैंने कहा था कि मैं हमेशा बोलती थी आई वांटेड अ सेल्फ मेड मैन, है ना? सो एक्चुअली सब कुछ था हमारी लाइफ में, लेकिन जीरो हो गए थे. वहां से विनोद ने बहुत मेहनत करके सब पैसे कमाए. सो नाउ आई हैव गॉट अ सेल्फ मेड मैन, या? सो दैट्स व्हाई जब भी आप बोलते हो तो बहुत सोच सोच के बोला करो. यू डोंट नो व्हाट इम्पैक्ट ये कहाँ पे क्या आ सकता है. एंड जब हम ये 5 साल में बहुत कुछ सीख गए, हम से वो सीखा कि अगर बुरे वक्त में बहुत लोग हेल्प नहीं करते, आप ही को मेहनत करके ऊपर आना है. आप ही के ऊपर है कि आप किस तरीके से मेहनत करके ऊपर आते हो एंड हाउ यू अर्न मनी, बिकॉज कोई भी आपको हेल्प नहीं करता है. एंड जब भी विनोद बहुत बिजनेस में अच्छा करने लगे तो कितना भी बिजनेसमैन अच्छा करे, यू नो, जब भी आप पैसे मांगते हो कि हाँ भाई इस चीज के लिए हमको पैसे चाहिए, तो 10,000 अगर मांगे तो 10,000 मिल तो जाते हैं, राइट? लेकिन अगर हमको ज्यादा चाहिए उससे तो क्या पूछते हैं हस्बैंड लोग, अच्छा पहले बताओ वो 10,000 कहाँ खर्चा किए, राइट? तो लेडीज होते हुए मेरे को 7,500-8,000 का खर्चा पता होता था, 2,000 कहाँ गए पता नहीं, राइट? एंड एवरी टाइम इसी चीज पे हम दोनों अटकते थे. सो आई डिसाइडेड कि यू नो कुछ तो अपना करना है अभी. एंड तभी मैं सोच ही रही थी कि मुझे इसी दौरान एक्चुअली जब विनोद 5 साल स्ट्रगल कर रहे थे उसी वक्त हमारा बेटा भी हो गया था. सो इफ आई हैव टू ब्रीफ इट अप, 18 आई गॉट मैरिड, 18 I got engaged, 19 I got married, 20 I got my daughter, 22 I had my son, right? And जब ये बिजनेस विनोद का बहुत अच्छा चलने लगा था तभी मेरे भी मन में ऐसे विचार था कि आई वांटेड टू स्टार्ट समथिंग. और मुझे बहुत मन था कि मैं एक प्ले स्कूल शुरू करूं, बिकॉज उस वक्त मुंबई में बहुत अच्छे प्ले स्कूल स्टैंडर्ड के नहीं हुआ करते थे. एंड आई वांटेड टू हैव अ वेरी गुड स्टैंडर्ड प्ले स्कूल. लेकिन विनोद को ये डर था कि अगर इन्वेस्टमेंट किया तो कहीं फंसा ना दे, बिकॉज आई वाज अ टोटल हाउसवाइफ और किस तरीके से मैं करूंगी, ही वाज नॉट कॉन्फिडेंट. एंड ऐसे सोच ही रहे थे कि विनोद की कजिन सिस्टर हैं, उन्होंने हमको ये बिजनेस बताया. एंड जब उन्होंने बिजनेस बताया तो मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा, बिकॉज जो जो चीजें मैं देख रही थी वो सब कुछ मुझे उसमें प्लान में दिखा. उन्होंने कहा कि इसमें आप एक्स्ट्रा पैसे कमा कर सकते हो. सो दैट वाज वन थिंग मैं सच में ढूंढ रही थी कि कुछ एक्स्ट्रा हो. और एक तो विनोद अपने बिजनेस में इतना बिजी रहते थे कि मेरे लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं था, और मैं किटी पार्टीज वगैरह आई डोंट लाइक सो मच, तो मुझे मेरा टाइम अच्छे से यूटिलाइज करना था. सो दैट वाज वन थिंग कि मैंने सोचा ओके ये काम करके अगर हम पैसे कमा सकते हैं दैट इज नाइस. दूसरी चीज उसमें मुझे यही दिखा कि विनोद जो इतने बिजी रहते हैं मेरे साथ बिल्कुल भी टाइम स्पेंड नहीं कर सकते. अगर ये बिजनेस मैंने बिल्ड किया तो थोड़ा बहुत मैं उनका टाइम ले सकती हूँ, वो मुझे बहुत अच्छा लगा. तीसरी चीज उन्होंने बोला कि ये बिजनेस अगर आप बहुत अच्छे से करते हो तो जनरेशंस टू कम चल सकता है. बिकॉज हमने बहुत डिफिकल्ट पैच देखा था, तो वन थिंग मेरे दिमाग में हमेशा गूंजता था, कुछ तो ऐसे करना है कि हमारे बच्चों को कभी भी लाइफ में कोई डिफिकल्ट पैच आए तो एक बैकअप होना चाहिए. तो वो भी मुझे बहुत अच्छा लगा. और चौथी चीज उन्होंने बताया कि इस बिजनेस को अगर आप कुछ अच्छे लेवल तक ले जाते हो तो आपको बहुत सारा ट्रैवल मिलता है. नाउ दैट वाज माय बग. मुझे घूमना फिरना बहुत पसंद था, तो जो जो चीजें मैं ढूंढ रही थी बिजनेस में उन्होंने जब वो बताया तब वो सब मुझे दिखा. विनोद को उस समय नहीं दिखा लेकिन मुझको दिख गया. एंड मैंने उनको बोला अच्छा ठीक है हम बाद में बताते हैं आपको. बाद में बात हुई तो विनोद ने बोला कि ये नहीं बिजनेस करना है, इसको करके क्या करना है. तो मैंने उनको कहा करने में जाता ही क्या है, अगर हम कुछ कर सकते हैं व्हाई नॉट. एंड तो विनोद ने बोला अच्छा अगर ये किया तो फिर आप प्ले स्कूल नहीं खोलोगे. मैंने कहा नहीं खोलूंगी. तो बोले ठीक है चल लाखों बचे ये 1000s दे के फिनिश करते हैं. ये हमारी स्टोरी थी एंटर होने की.
लेकिन विनोद ने बोला था अच्छा ठीक है ज्वाइन कर ले, तू कर। मैंने कहा देखो मैं आपको बताती हूँ, मैं एक हाउस वाइफ, राइट, वहां से इस बिजनेस में मैं आ रही हूँ, बहुत कुछ मुझे पता नहीं है। आप एक काम कीजिएगा, आप मुझे थोड़ा हेल्प कीजिएगा। जब हमने शुरू किया हम कोई परफेक्शन पे नहीं थे, सो समहाउ वी लर्नड। लेकिन अगर आपका ड्रीम स्ट्रांग है ना, हमारे दिमाग में ड्रीम बहुत स्ट्रांग था, एटलीस्ट फॉर मी आई वाज सो क्लियर कि मुझे ये बिजनेस अपने बच्चों के लिए बांधना ही बांधना है, चाहे कुछ भी हो जाए। फिर रास्ते निकल आते हैं, डोंट वरी अगर लिस्ट कहाँ से आएगा क्या, पहले ड्रीम पे फोकस करना बहुत जरूरी है। एंड दैट्स व्हाट वी डिड। एंड वहां से फिर हमने जो विनोद ने प्लान शो वगैरह शुरू किया, बिकॉज हम जिस ब्रैकेट से आते हैं जहाँ पे पैसे की कोई कमी नहीं है, एंड लोगों की ना सुनो, लोगों के घर जाओ, वाज वेरी वेरी टफ। लेकिन आई थिंक उनके लव और फ्रेंडशिप और हमारे ड्रीम ने ये 3 चीजें बिल्कुल सील कर दी थी। एंड उनका तो मैजिकल हैंड है। दूसरी चीज थी कि जब हम इतना कमा रहे थे तो एक चीज हमारे पेरेंट्स जो हैं उनको भी बिजनेस समझ में नहीं आ रहा था। वो ऐसे सोच रहे थे कि हम ये बिजनेस कर क्यों रहे हैं, राइट। तो स्पेशली माय पेरेंट्स, वो तो जब भी मिलते थे तो बोलते थे हमको समझ में नहीं आ रहा है आप क्यों कर रहे हो बिजनेस, विनोद इतना अच्छा कमा रहा है, फिर क्या जरूरत है पैसे के पीछे भागने की। मैंने उनको समझाने की कोशिश की, फिर सोचा कि समझाना बेकार है, समझने वाले हैं नहीं। तो मैंने उनको बोला देखो अगर आप बोलोगे तो भी मैं ये बिजनेस करने वाली हूँ, तो अच्छा है अगर आप मुझे नहीं बोलो। एंड हम ये बिजनेस को कंटिन्यू, मैंने उनको कभी नहीं बोला कि हम इस लेवल पे पहुंचे, ऐसा हुआ, कभी नो नेगेटिव एंड नो पॉजिटिव अबाउट द बिजनेस कभी मैंने मेरी पेरेंट्स को बताया। लेकिन मेरी मॉम को किसी रिलेटिव ने फोन किया था और उनको बोला था आपकी बेटी, माय गॉड वो तो इतना अच्छा बिजनेस कर रही है आपकी बेटी एंड जमाई। एंड नेक्स्ट कॉल मेरी मॉम ने मुझे दिया, अरे तूने तो कभी बताया ही नहीं, इतना अच्छा बिजनेस तू कर रही है। मैंने कहा अभी तो खुश है ना, तो बस यू बी दैट वे। सो दिस इज एडवाइस, यू नो, पेरेंट्स कभी कभी शायद ना समझे, इसका मतलब ये नहीं है वो बुरे हैं, बट द थिंग इज हम वो पिक्चर उनके सामने बता नहीं सकते। सो यू बी पेशेंट, है ना, उनके फ्लो में मत चले जाइए, बिकॉज यू आपने सेमिनार वगैरह अटेंड किया, यू नो द पोटेंशियल। या सो दैट्स एन एडवाइस फॉर यू। कभी लाइफ में कभी आपके घर पे कोई सिचुएशन आती है तो घबराना नहीं। भगवान ने आपको बहुत स्ट्रेंथ दी है ना, टीम दी है, स्ट्रेंथ दी है, आप खाली घबराओ मत, उसको पकड़ के आगे जाइए, रास्ते अपने आप निकलते आएंगे। सो दैट वॉज वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरी चीज, जब हम इस बिजनेस को बिल्ड कर रहे थे हमारे बच्चे बहुत छोटे थे। मेरा बेटा जो है, जब हम मीटिंग वगैरह में जाते थे, आई स्टिल रिमेम्बर, वो बिल्कुल साड़ी हमारी खींचता था। आज जैसे हम आपको दिखते हैं, आई वॉज अ टोटल साड़ी पर्सन, वेरी शाय पर्सन। किसी से बात करने को मेरे को बहुत डर लगता था, बहुत फ्रेंडली बाय नेचर, लेकिन नए लोगों से बात करने को बहुत डर लगता था। एंड इस बिजनेस की बदौलत एंड ड्रीम की बदौलत आई कैन टेल यू कि बहुत सारे चेंजेस खुद में आने लगे, कि आज हम यहाँ से भी बात कर सकते हैं, आपसे बात कर सकते हैं। ड्रेस कोड बहुत चेंज किया है, खुद को बहुत चेंज किया है। एंड बच्चों की तो क्या बात बोलूं, उस वक्त ऐसे बोलते थे मीटिंग में मत जाओ, खींचेंगे, मे बी फोन करके, आजकल तो फोन करके भी इरिटेट करेंगे। लेकिन आज के तौर पे मैं आपको बताती हूँ, अगर हमारे बच्चों को हमने बहुत जगहों पे घुमाया है, फिराया, लेकिन आज अगर उनको पूछो ना आपकी बेस्ट ट्रिप कौन सी थी, तो आपको बोलेंगे वो जब हम गए थे पटाया फैमिली ट्रिप में, दैट वाज द बेस्ट ट्रिप, है ना। सो आप जो बच्चे हैं वो भी समझते हैं कि कितनी एसोसिएशन अच्छी है, कितने लोग अच्छे हैं, लेकिन आपको बहुत दृढ़ता के साथ अगर आप इस बिजनेस को बिल्ड करते हो तो यू कैन डेफिनेटली सी द रिजल्ट्स। हम जैसे जो सिंपल कपल जिनको बहुत लोग जानते नहीं थे, अगर हम बिजनेस कर सकते तो आप कर सकते हैं। मुझ जैसी जो बहुत ही शाय हाउसवाइफ है ना, हम बैंक में जाते थे तो कहीं पे कुछ कागज देना है तो विनोद को बोलते थे अच्छा मैं कर देती हूँ। जब हम लाइन में आगे आएंगे तो विनोद को बोलती थी इधर आ जाओ, कागज का टाइम आ गया, राइट। सो वहां से मैं आती हूँ, सो यू कैन इमेजिन। लेकिन इस दौरान मैं एक चीज बताऊंगी, मेरे हस्बैंड ने बहुत सपोर्ट किया, मुझे हमेशा बोलते थे यू आर द बेस्ट, यू आर द बेस्ट, आप कर सकते हो, डोंट हैव टू वरी, वो क्या बंदा है, कुछ नहीं डरने का, आप कर सकते हो, आपने उनसे अच्छा। ऑलवेज ही पुट मी कि आई एम द बेस्ट, एंड दैट इज व्हाई वो वैक्सीनेशन के तौर पे काम करता गया, एंड टुडे आई रियली फील आई एम द बेस्ट।
या बट दैट इज द रोल. एंड इन केस आपकी वाइफ की जगह पे हस्बैंड में ही ऐसा है तो आई वुड से वाइफ को एनकरेज करके आप मेक श्योर कि आप उनको आगे करते हो. दिस होल बिजनेस इज अबाउट अगर पार्टनरशिप में बिजनेस कर रहे हो, अगर हस्बैंड वाइफ में कर रहे हो तो मेक श्योर एक दूसरों को आप ऊपर खींचते हो. एंड दैट्स व्हाट वी हैव डन. जब मैं डाउन होती थी तो विनोद ने मुझे ऊपर खींचा. जब विनोद तो डाउन होते ही नहीं है फर्स्ट ऑफ ऑल. अगर मुझे कहीं पे लगे तो आई डेफिनेटली बोल, लेकिन मेरा रोल बहुत कम रहता है. बट दैट्स हाउ वी हैव डन इट. टुडे आई कैन टेल यू कि हमारा गेन क्या है इस बिजनेस में. अगर आप विनोद को आज देखते हो तो ही इज अ वेरी फ्रेंडली पर्सन. बहुत जोवियल है, बहुत फ्रेंडली है, सबके साथ बात करते हैं. लेकिन विनोद बिल्कुल भी ऐसे नहीं थे. विनोद बहुत कड़क मिजाज के थे. मैं एज अ वाइफ बात करते भी डरती थी. अगर कोई जोक सुनाना है तो सोचना पड़ता था कि जोक सुनाया उसका आफ्टर रिएक्शन विद हिम क्या होने वाला है. आई वॉज दैट स्केयर्ड टू टॉक टू हिम. लेकिन मैंने जब बिजनेस में आए और बुक्स एंड कैसेट्स में गए अंदर सीडीज में, तो मैंने देखा कि विनोद बहुत चेंज हो रहे हैं. तो ये चीज तो मैंने सोच लिया, इफ समवन कैन चेंज माय हस्बैंड इट इज. सो आई डिसाइडेड कि इसको बहुत फर्मली होल्ड करके इस बिजनेस को बिल्ड करेंगे. इस बिजनेस के पहले अगर मैं आपको बताऊं तो मैं बहुत प्रे करती थी कि हे भगवान कुछ तो करो कि विनोद थोड़ा चेंज हो जाए. बिकॉज इतने स्ट्रिक्ट थे ना कि हर चीज से डर लगता था. एंड गॉड जस्ट गिफ्टेड अस दिस बिजनेस. उस वक्त शायद दिखा नहीं मुझे, लेकिन एक पैकेज के तौर पे आया. आज जो विनोद है इज अ टोटली वेरी वेरी लविंग हस्बैंड, वेरी फ्रेंडली टू एवरीबडी, ऑलवेज देयर, अपनी टीम के लिए हमेशा रहते हैं. एंड इफ आई हैव टू टेल यू अबाउट हमारा गेन, तो फर्स्ट गेन आई गेन माई हस्बैंड बैक इन दिस लाइफ. देन बहुत सारा टाइम मिला मेरे हस्बैंड का. आई नेवर यूज्ड टू गेट टाइम विद हिम, नेवर. एंड कभी शांति से 2 मिनट बात करने का, बिकॉज ही वॉज सो बिजी मेकिंग मनी. एंड वो भी हमारे गुट के लिए मैं समझती हूँ, लेकिन बिल्कुल टाइम नहीं था. लेकिन आज के तौर पे हम दोनों साथ में बहुत टाइम बिताते हैं. सो आई गेन्ड हिज टाइम, आई गेन्ड हिज लव, आई गेन्ड अ जोवियल हस्बैंड विच आई ऑलवेज वांटेड. दूसरी चीज अगर मैं बच्चों की बात करूं, लोग बोलते हैं कि बच्चों के साथ आप इस बिजनेस में अगर यू डोंट स्पेंड टाइम विद चिल्ड्रन, बच्चे बिगड़ जाएंगे. लेट मी अश्योर यू, बच्चे बिगड़ेंगे नहीं, संवर जाएंगे आपके. अगर आप सिस्टम में जुड़े हुए हैं, वो भी वॉच कर रहे हैं. आप जो चीजें बात करते हो, जो पॉजिटिव बात करते हो, वो सब कैच कर रहे हैं. इफ आई हैव टू टेल यू, माई किड्स है ना, बहुत अच्छे हैं दोनों बच्चे. वी रियली लव देम अ लॉट एंड दे लव अस इक्वली. लेकिन मैं आपको एक छोटा इंसिडेंट, आप समझ सकते हो किस तरीके की ग्रूमिंग होती है बच्चों की. हमारा जब न्यू ईयर था ये लास्ट ईयर में, तो हमने 3-4 दिन का ट्रिप सोचा था, हम जा रहे हैं बाहर. हमने एक छोटा प्रोग्राम बनाया था 2-3 दिन का. एंड हमने बच्चों को सिर्फ बोला था हम जा रहे हैं ऐसे ऐसे न्यू ईयर पे. तो बोले हम भी आप लोगों के साथ आएंगे. व्हाट आर देयर एजेस? 25 एंड 22. वो ऐसी एज है जहाँ पे आपको फ्रेंड्स के साथ बहुत मजा आता है. तो मैंने उनको उल्टे का बोला, नहीं आप जाओ अपने फ्रेंड्स के साथ कंटिन्यू करो, हम हमारे फ्रेंड्स के साथ निकल जाएंगे. बोले नो नो नो, कुछ नहीं, हम आप ही के साथ आएंगे एंड वी वांट टू स्पेंड अ न्यू ईयर विथ यू, विच आई थिंक इज अ वेरी बिग गिफ्ट फॉर मी, यू नो. एंड दूसरी पर्सनल मैंने आपको बताया, आई वॉज वेरी शाय, किसी के साथ बात नहीं कर सकती थी. फ्रॉम देयर आई बिकेम वेरी बोल्ड. ट्रैवल, हर चीज के लिए मुझे विनोद की जरूरत पड़ती थी. टुडे बाय गॉड्स ग्रेस आई बिकम सो इंडिपेंडेंट बिकॉज ऑफ दिस बिजनेस. एंड योर ड्रीम विल मेक यू, ड्रीम जो है ना आपको ऐसी चीजें करा देगा जो शायद लाइफ में कभी नहीं की होगी आपने. तो मैंने बहुत ट्रैवल सीख लिया. आज के तौर पे सिर्फ गाड़ी ड्राइवर है ऐसे नहीं, गाड़ी ड्राइवर है उसमें भी जा सकते हैं, ट्रेन से भी जा सकती हूँ, बस से भी जा सकती हूँ. किसी भी एरिया में मुंबई में एक कॉर्नर में भी बोल दो कि इधर जाना है, पहुंच जाएंगे. But I think that is a big hats off to this system. Because of this system and dream, I think I could do that also. दूसरा है फ्रेंड्स. यू नो, आपको लगता है कि इस बिजनेस में आने से जो आपके फ्रेंडशिप्स हैं वो शायद छूट जाएंगे. लेट मी टेल यू, वी हैव मेड अमेजिंग गुड फ्रेंडशिप्स विद इन दिस बिजनेस. इतने प्यार वाले हैं कि मैं आपको बता नहीं सकती. सो हमारी फुल टीम आई थी हमको एयरपोर्ट छोड़ने. You know, so that is love, that is friendship that you have gained. हमारे पास टीम में ऐसे अच्छे लोग हैं, फ्रेंडशिप्स इतनी टाइट हैं कि
मुझे पता है कि मुझे सिर्फ बोलना है, ऐसा करना है, and they will be there, no doubts about them. So we have gained lovely friendships. So these are some of the benefits that we have gained. And also what I can tell you is, if I have to tell you about the gains, we have many things today. Of course, Vinod ka traditional business bhi hai. We already live in a 3,000 square feet home in a very posh area in Mumbai. I don't know about यहाँ की areas के बारे में मुझे इतना कुछ पता नहीं है, लेकिन 3,000 square feet in Mumbai in a posh area बहुत कुछ cost करता है. So we live in that. हमारे पास neighboring जो हमारी next you can say we have different stations. So neighboring station में also we have another 4,000 square feet home. We are coming up with a holiday home which is around 6,000 square feet. Okay, and it's on a top of a hill. So we are building that also. We have everything in life. If you ask comfortable living, full-time servants, है ना, driver, car, सब कुछ है. कंफर्टेबल लिविंग है. आज के तौर पे भी बहुत कंफर्टेबल से लिव कर रहे हैं. लेकिन मुझे ऐसे लगता है अगर हम जैसे लोगों को इस बिजनेस की जरूरत है, बहुत सारे लोगों को इस बिजनेस की जरूरत है. हमने शायद इस बिजनेस को बच्चों के लिए बिल्ड किया है, बट वी हैव मेनी पीपल इन आवर टीम जिन्होंने इसी बिजनेस को बिल्ड करके, किन्होंने अपनी इंटरनेशनल स्कूल में अपने बच्चों को एजुकेशन दिलवाई है. कुछ लोगों ने अपने इंटीरियर्स में रहते थे, उनको मेन सिटी में आना था. बिकॉज ऑफ दिस बिजनेस दे कुड क्विट देयर ट्रेडिशनल बिजनेस एंड लिव इन द सिटी. वी हैव मेनी पीपल जो कुछ घर तो ले लिया लेकिन लोन देने के पैसे नहीं हैं. थ्रू दिस बिजनेस दे हैव बीन एबल टू डू इट. इट इज नॉट अबाउट हम कितने खुश हैं, लेकिन हम कितने लोगों को हमारे इस बिजनेस की एफर्ट्स से दूसरे लोगों को में खुशी ला सकते हैं. द होल बिजनेस इज ऑल अबाउट दैट, राइट. एंड बहुत कुछ और भी है. हम बहुत सारे वेकेशंस लेते हैं. हमारे जो भी बोनसेस होते हैं, मेजॉरिटी टाइम्स मैं ज्वेलरी में स्पेंड करती हूँ. मैं बड़े बड़े अमाउंट सीधे ज्वेलरी में लगाती हूँ. समटाइम्स वी टेक वेकेशन, है ना. हमने अपने बच्चों को 3 दिन वी हैड टेकन देम फ्रॉम वन बोनस, वी हैड टेकन देम टोटली टू मालदीव्स, है ना. एंड वी हैड पुट देम वाटर विला में. अगर मालदीव्स पता नहीं है तो गूगल करके आप देख लो, वाटर विला की कॉस्ट देख लो. या सो इट इज ऑलमोस्ट 40-50,000 पर डे का कॉस्ट है, राइट, फॉर 2 people. 50,000 for 2 people, right? And हमारा मेजर चंक ऑफ जो भी आता है वी स्पेंड ऑन वेकेशंस, बिकॉज वो हमारा बस है. We love spending time with our children. We love spending time on holidays. We love everything. But above all, I can just tell you one thing. अपने ड्रीम के ऊपर बहुत सारा फोकस करेंगे तो बाकी की चीजें बहुत जल्दी से आ जाती हैं. हमारा जो भी नेटवर्क अच्छे से खड़ा है is all because of my husband and of course my efforts. We both put in together. लेकिन इन्होंने जो मुझे सपोर्ट किया, and today that I am standing and talking is all because of him. He is my superstar. And one more thing I just want to tell you, जब भी हम 20th एनिवर्सरी हमारा क्रॉस किया था तो मैं हमेशा विनोद को बोलती थी जब भी 25th एनिवर्सरी आएगी तो हम मुंबई में नहीं करेंगे. We'll go somewhere abroad. We'll go somewhere abroad. 20th एनिवर्सरी से मेरा ये रट्टा चालू था. जब 25th एनिवर्सरी के टाइम पे हम आए थे, वी वर गोइंग टू टोरंटो, और हमको 9th जुलाई इज आवर एनिवर्सरी डेट. दे गिव अस टिकट्स फॉर 9th जुलाई, you know. So this is one added advantage. We had fantastic time on the 25th anniversary. Not only that, वैसे तो हम अकेले अगर इस बिजनेस में नहीं होते तो 25th anniversary me and my husband and at the most my children and family. लेकिन because of this business, me and our friends, all of us on the 25th anniversary, and we had fantastic time. From there हमने extension लिया था and we also went to the Alaskan cruise. That was our 25th anniversary.